Now we'll see work done during adiabatic process. So in adiabatic process, as we know that the amount of heat energy remains constant, and we are having a cylinder in which we have filled 1 mole of ideal gas. So this gas is our system. Now suppose the system expands or it compresses, then the system will change its state from P1 V1 T1 to P2 V2 T2. So in initial state, these are the thermodynamic variables which represents the state of the system, and these are the state variables which represents the final state of the system. So for adiabatic process, the necessary condition, as we have studied, that the boundary of the system should be non-conducting. So the cylinder is made up of a non-conducting material, or you can say adiabatic material, and this piston is also made up of a non-conducting material. Now suppose expansion or compression of this gaseous system takes place, then the piston will be displaced by an amount of dx. अगर piston ऊपर जा रहा है तो भी इसका displacement dx हो रहा है, और अगर piston यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो भी उसका displacement कितना हो रहा है, dx जितना ही displacement हो रहा है. So for the small amount of displacement, if I calculate the work done, small amount of work done, then according to the formula of work done, it will be force acting on the piston multiplied by the displacement of the piston. Now how can I calculate the force acting on the piston? See, I know that pressure is equals to force per unit area. From this I can obtain force is equals to pressure into area. So we'll be substituting this equation of force instead of here. So instead of force, I have written pressure into area and this dx as it is. But see here, I know that a dx is equals to dv. This is area. So this area multiplied by this dx, that will give me volume of this much portion, right? So instead of this a dx, we have written dv. So work done is equals to p dv. Now this is the small amount of work done during the small displacement dx. But if I want to calculate the total work done, then I'll have to integrate this dw, and when I integrate this dw, then I'll get the total work done as integration p dv. राइट हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये dw की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन p dv. एंड सिस्टम जो है वो अपना स्टेट चेंज करती है, अपना वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं. यहाँ पर फॉर्मूला में वॉल्यूम आ रहा है. सो मैं जो लिमिट्स लिखूंगी इंटीग्रेशन के वो भी वॉल्यूम के टर्म्स में ही होने चाहिए. तो इनिशियल स्टेट में सिस्टम का वॉल्यूम था v1, फाइनल स्टेट में था v2. सो मेरे इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो है दे विल बी फ्रॉम v1 टू v2. Now we know for an adiabatic process we have an equation like this, जिसको हमने without proof माना था, right? So from this equation I can make p subject of equation. तो ये v raised to gamma यहाँ k के डिनोमिनेटर में चला जाएगा. पर अगर मुझे उसको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, तो मुझे ये गैमा का जो साइन है वो चेंज कर देना पड़ेगा. ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है p is equals to k divided by v raised to gamma, but ये v raised to gamma हमने numerator में लिखा है, and that's why here negative sign is appearing. Okay, so we'll substitute this value of p in equation 1. So I will get somewhat this kind of equation. W is equals to integration v1 to v2. Instead of this p, will substitute this value. तो ऐसा कुछ इक्वेशन हमें मिल जाएगा. अब यहां से ये k जो है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, एंड देन विल इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी. सो यू कैन सी हियर वी हैव टेकन दिस k आउट. नाउ दिस इज v रेज टू माइनस gamma, राइट? सो सी वी नो द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. x रेज टू n dx इज व्हाट? इट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो x हमारा क्या है, यहाँ पर v है, और ये n क्या है हमारा, माइनस गैमा है. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन द इंटीग्रेशन ऑफ v रेज टू माइनस गैमा विद रिस्पेक्ट टू v विल बी व्हाट? इट विल बी v रेज टू माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1. दिस इज n. ओके, सो n प्लस 1 एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वर v1 एंड v2. अब हम ये लिमिट्स हैं वो अंदर अप्लाई करेंगे, और ये जो माइनस गैमा प्लस 1 है उसको हमने पहले से ही बाहर ले लिया है. सो अब
जब लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो सी फर्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ओवर हियर. सो कैसा मिल जाएगा, v2 रेज टू माइनस गैमा प्लस 1. ये फॉर्मूला का माइनस है और अब आएगा लोअर लिमिट. सो हियर v1 रेज टू माइनस गैमा प्लस 1. सो ये इंटीग्रेशन भी हो गया, हमने लिमिट्स भी अप्लाई कर दिए हैं. अब एक और चीज कर रहे हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो सी यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा न्यूमरेटर है उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर विद माइनस, this gamma becomes positive and this 1 becomes negative. So instead of this I can write gamma minus 1. And now here what happens, I will interchange these two terms. देखो v1 वाला टर्म जो है वो हमने आगे लिख लिया है, पावर्स रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया है. ऊपर से जो पावर आ रहा था वही का वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. ओके सिर्फ ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस माइनस. सो v1 वाला टर्म पहले आ गया, v2 वाला टर्म बाद में आ गया और ये k जो है वो साथ में मैंने यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है. सो दिस इज अवर इक्वेशन 2. बट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आई नो दिस इक्वेशन. अगेन ये वही इक्वेशन है जिसको हमने विदाउट प्रूफ ही मान लिया था. pv रेज टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अब pv रेज टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम स्टेट 1 में से स्टेट 2 में जाती है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड v रेज टू गैमा कांस्टेंट ही रहता है. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड v रेज टू गैमा फॉर स्टेट 1. इट इज कांस्टेंट इक्वल टू k. And this is the product of pressure and V raised to gamma for the second state. It is also constant. So P1 V1 raised to gamma is equals to P2 V2 raised to gamma हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों की ही वैल्यू कैसी है, K. कांस्टेंट ही रहता है, इसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है for adiabatic process. So now I'll be substituting this value in equation 2. So जहां पर ये V1 है वहां पर ये k की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं, P1 V1 raised to gamma. So instead of this constant, by using this equation, I will be substituting this value. So just see here, instead of this k, we have substituted this value, P1 V1 raised to gamma. This V1 raised to minus gamma plus 1 is as it is. Same way, instead of this k, we have substituted P2 V2. ठीक है. सो P2 V2 रेज टू गैमा, ये वाली वैल्यू यहां पर डाल दिए. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सो नाउ जस्ट सी दिस रिमेन्स एज इट इज. यहां ये P1 आ जाएगा. ओके दिस इज V1 रेज टू गैमा. सो P1 V1 रेज टू गैमा इज एज इट इज. ये है V1 रेज टू माइनस गैमा प्लस 1. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज V1 रेज टू माइनस गैमा इनटू V1 रेज टू 1. अगर मेरे पास ऐसा कुछ है x रेज टू m प्लस n, तो इसका क्या मतलब होता है, इट इज x रेज टू m इंटू x रेज टू n. ठीक है, ये होता है. सो ये वाला हमने यहां यूज किया है. दिस इज V1 रेज टू माइनस गैमा प्लस 1. इट कैन बी रिटन एज V1 रेज टू माइनस गैमा इंटू V1 raised to 1. Similarly, for this quantity also we have written in that way. Now this is V1 raised to gamma and this is V1 raised to minus gamma. V1 raised to minus gamma का मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, V1 raised to gamma डिनोमिनेटर में चली जाएगी. सो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म मैं लिखती हूँ, 1 upon gamma minus 1 is equals to P1 V1 raised to gamma divided by, ये V1 raised to minus gamma ऊपर है न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में लिखना है तो इट विल बिकम V1 raised to gamma into V1 raised to 1 है तो उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. सेम वे यहाँ पर P2 V2 raised to gamma, दिस इज V2 raised to minus gamma, तो ये V2 raised to gamma नीचे आ गया एंड दिस V2 as it is. अब अगर आप देखो तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में कैंसिल हो जाती है. सो वो यहां पर पहले ही कैंसिल कर दी है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ P1 V1 minus P2 V2. So we have this kind of equation. Now for ideal gas, we know the value of P1 V1, right? It is P1 V1 is equals to mu RT1. बट mu तो क्या है, 1 है, हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया था.
So from ideal gas equation, I can write P1V1 is equals to RT1 and for the final state, I can write P2V2 is equals to RT2. तो यहाँ से हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा. इंस्टेड ऑफ P1V1 आई विल सब्स्टिट्यूट RT1 एंड हियर आई विल सब्स्टिट्यूट RT2. अब यहाँ से ये जो R है वो दोनों जगह से हम कॉमन बाहर निकाल देंगे. सो आई विल ऑब्टेन वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस. Okay, so this is the equation for work done during adiabatic process. Now suppose we are having adiabatic expansion. Then we can say that the work is done by the gas. And whenever expansion will take place, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, system will cool down. क्योंकि expansion में गैस वर्क करता है और जब गैस वर्क करता है तो अपनी एनर्जी लूज कर देता है और इसकी वजह से कूलिंग हो जाता है. कूलिंग हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ कि फाइनल स्टेट का जो टेम्परेचर है वो इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर से छोटा होगा, राइट. और अगर ऐसा हुआ, आप यहां सब्स्टिट्यूट करो, इफ दिस इज स्मॉलर देन दिस वन, देन दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, सो वर्क डन ऑल्सो विल बी पॉजिटिव. अब इसका उल्टा देखते हैं. सपोज एडियाबेटिक कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस. कंप्रेशन मतलब वर्क इज डन on the gas. Then in this situation, the energy of the system increases and because of that, temperature of the system also increases. So I can say that the temperature of the final state is bigger than the temperature of the initial state. So from this formula, if T2 is bigger than T1, then this quantity will become negative. So I can say that work done also will be negative.